You so much, Hardik, for inviting me in this forum. I'll try my best not to disappoint anyone. Everyone's time is very important, and they will try to learn something meaningful, dealing with the problems and their practical solution based on the wisdom of Bhagavad Gita. Okay, so let's start with short Mangalacharan. Umagyanativanandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So effective ways of managing stress. Stress is something like which cannot be separated from us. Like sometimes people ask, you are giving this session on stress management from the last many years. So are you in a stress sometime? Yeah, definitely. When the situations comes in front of us which are very unpalatable in nature, definitely temporarily we are also put in a stress. But mainly when the such unpleasant situations or the effect of such unpleasant situations continues in our life for a long term, then it causes even effect in the body platform. You know? So that's why it's important to understand how we can effectively deal with it. आप लोग में से कुछ लोग अगर कैमरे ऑन कर लेंगे तो मेरे लिए भी काफी सहायता होगी. कभी आपने लेक्चर दिया हो तो आप समझ सकते हैं लाइक द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस इज द फ्यूल और मोटिवेशन फॉर द स्पीकर, है ना. सो सो दैट वे thanking you in advance for those who are going to switch on their cameras in future, in the future coming time. तो इसके पहले कि मैं अपने सेशन को शुरू करूं, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरे जीवन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न गैस कर सकते हैं. व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन माय लाइफ? एनी गेस फ्रॉम द ऑडियंस साइड? Apart from the normal questions like how are you, how do you do, what is the most for? Okay, Dr. Preeti Jan is mentioning why you became monk. It's partially correct, not fully correct. Thanks for your contribution. It's partially correct. Someone else would like to give a try? What made you to become monk? Partially right. You're not wrong. Thanks for your contribution. Someone else? About stress? No, 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 definitely. This is not the most frequently asked question in my life about stress. Not very difficult. Why joined ISKCON? Mm, partially correct. What you get after becoming monk? This is one of the asked questions which I face, but not the most frequently asked question. What you get after becoming monk? Yeah, people ask. After studying at NIT, why did you leave that path and became monk? Yeah, this is exact. Thanks to Shyamla ji for putting the right question. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये था कि अगर आपको साधु ही बनना था तो आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? कई बार लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, बोलते आपकी वजह से हमारे भारत देश का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कम हो गया. हाँ, ऐसा भी बोलते हैं. So I also have an interesting answer which I put in the form of questions only. I asked them, do we need uh, educated doctor in our society? Do we need an educated engineer in our society? Do we need educated politician, educated lawyer? Do we need educated farmer in our society? The answer is of all these questions is yes. Then why not an educated saint? है ना? Why not a educated saint?
who can I can utilize all my talents and skills in connecting people basically, है ना? I take sessions on science and spirituality, and of course, like I take the modern problems and what are the solutions mentioned in the pages of Bhagavad Gita, है ना? I try to like make people aware of the solutions. So here also in this session also we are going to cover hmm, this solutions. What can be the possible solutions to reduce the stress in our life? See, like if you'll uh, if you'll ask AI, artificial intelligence, that how to handle stress, this that will also give some solutions, and even doctors also give some solutions. डॉक्टर्स क्या सॉल्यूशन देते हैं? आप जो है तेज तेज सांसें लीजिए, आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, आप योगा कीजिए, है ना? प्राणायाम कीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट एक्चुअली जब हम सबकॉन्शियस लेवल पे बात करते हैं, जहाँ पे स्क्रिप्चर्स भगवत गीता जाकर के बात करती है कि हमारी थॉट प्रोसेसिंग जो है अ, वो किस प्रकार की रहेगी जब कोई चुनौतीपूर्ण या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे जीवन में आएगी, तो सेम सिचुएशन कैन हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, है ना? द रिस्पॉन्सेस आर गवर्न बाय द कॉन्शियसनेस विथ इन विच वी आर इन। चेतना के जिस स्तर पर हम हैं उस स्तर पे हम जो है रिएक्ट करेंगे। मौका है या मुसीबत है, डिपेंड्स अपॉन अवर कॉन्शियसनेस, है ना? जैसे एक कांच के ग्लास में आधा मैं भरूं, तो आधे लोग बोलेंगे आधा खाली है, आधे लोग बोलेंगे आधा ग्लास भरा है। तो हमको दिखता क्या है? आग के अंदर धुआं दिखता है या धुएं के अंदर आग, है ना? वी सी वॉट वी आर, वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर, बट वी सी थिंग्स एज वी आर। हमको चीजें वैसे ही नहीं दिखती जैसी चीजें होती हैं, हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। हम्म। इसका एक इंटरेस्टिंग फनी एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार जब मैं मोरेना मैं जेल प्रोग्राम करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के पास में गया, जेल इंचार्ज के पास में गया। मेरे पास में परमिशन थी कलेक्टर की। उस टाइम पे मोरेना में कलेक्टर आईएएस प्रियंका दास मैम थी, उनकी परमिशन थी मेरे पास में। तो जो जेलर था उसने कहा कि आपको ऑफिशियली तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि लेटर है आपके पास में, कलेक्टर का लेटर है, परंतु आप 6 महीने के बाद आ सकते हैं क्या? मुझे उसका ये सवाल बड़ा ही अजीबोगरीब लगा। मैंने कहा मेरे पास परमिशन है, मैं 2-3 दिन के लिए मोरेना में हूँ, क्यों मैं 6 महीने के बाद आऊंगा? तो बोलता है कि 6 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारे रिटायरमेंट से इसका क्या संबंध? तो बोलता है आपके पास परमिशन तो है जेल प्रोग्राम करने की, पर आज तक हमने 120 कैदियों को एक साथ कभी नहीं बुलाया। हम 15-16 कांस्टेबल जो हैं वो 120 कैदियों के साथ कैसे निपटेंगे अगर उन्हें भागने का प्लान बना लिया तो? So he was under stress. Why? Because I had a permission of collector to conduct a program for the prisoners, and he officially cannot say no to me. तो मैंने कहा I have not come here to give you stress, but basically I want to have interaction with the prisoners. I want to interact with them. It's just a 40-minute session. तो उसने कहा कि एक काम कीजिए आप 2 बैचेस में ले लीजिए, है ना? 40-40 के 40 लोग अगर कुछ उत्पात मचाएंगे तो फिर भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, 120 लोग एक साथ कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारे 15-16 कांस्टेबल्स की बस की बात नहीं है। ओके, आई एग्रीड फॉर इट। एंड देन जब मैं उस एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए गया जहाँ पे मुझे प्रोग्राम कंडक्ट करना था, तो उस समय एक चबूतरा जैसा था मोरेना की जेल में, जहाँ पे उस समय कैदी लोग जो थे वो कोई नहा रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई फर्श साफ कर रहा था। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रुक गया। इट वॉज अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर देम। उसके बाद उसमें से ही एक कैदी दूसरे को बोलता है स्वामी जी भी अंदर हो गए। क्या बोलता है? स्वामी जी भी अंदर हो गए। तो वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर, बट वी सी द थिंग्स एज वी आर। बाद में किसी दूसरे ने कहा नहीं नहीं है, इसके साथ में पुलिस वाले हैं, कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। द सेशन वेंट वेल एंड अल्टीमेटली दे ऑल वेरी मच अप्रिशिएटेड इट, because I was able to connect with them and I was able to impart some values lessons to them. I was able to tell them that they can utilize their present time in a much more constructive, meaningful way. So again, coming back to the point that when we face some stressful situation, uh, we have to understand that. Uh,
एक्चुअली इवेंट्स डू नॉट हैव द मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। देखिए बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे फॉर्मूलेज तो पढ़कर मैं यहाँ तक आया हूँ, है ना। इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल। 4 साल में 40 थ्योरी और 40 प्रैक्टिकल पढ़कर यहाँ तक आए हैं, बट उनका जीवन में ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख पाया मैं। पर ये जो भगवत गीता में जो सिद्धांत मुझे मिलते हैं, इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं अपने जीवन में काफी अच्छे से देख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे upon expectation, these are much more important formulas in my life। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है क्या? मैं ऑडिबल? It's better now. ओके। या तो जीवन से जुड़े हुए सिद्धांत जो है हमको मिलते हैं, है ना। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स। लोगों को लगता है रिसोर्सेज बढ़ा लेंगे, है ना। ना जी ना। डिजायर कंपोनेंट जो है उसका बहुत कुछ लेना देना है ना। वो शूट अप हो जाएगा तो फिर हैप्पीनेस हमारी कमी रह जाएगी। सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। लोग परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे, ना जी ना। एक्सपेक्टेशन डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा कंपोनेंट है एक्सपेक्टेशन का। So in that way, these are the equations which have a lot to do with our life. So events do not have meaning. We give meaning to the events. Events do not have color. We give color to the events. अपने आप में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है, वो अच्छी है कि खराब है, ये हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। हम्म। जितने भी आपको सफलतम लोग मिलेंगे, उन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छी खासी अनपैलेटेबल इवेंट्स तो आई आई हैं, है ना। मैं हर एक उस व्यक्ति से प्रभावित होता हूँ जो बहुत ही नीचे स्तर से बहुत ही ऊपर स्तर तक गया है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर की लाइफ हिस्ट्री हो, कि नरेंद्र मोदी जी की लाइफ हिस्ट्री हो, कि एम एस धोनी हो, कि कोई भी हो। आपको मालूम है अमिताभ बच्चन तो शुरुआत में जब एक्टिंग कैरियर में ज्वाइन किए थे, लोग कोई भाव ही नहीं देते, बोलते कि ये तो खंबे जैसा खड़ा है, क्या ही इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। रजनीकांत तो बस कंडक्टर थे। जॉन्टी रोड्स वर्ल्ड का नंबर 1 फील्डर, उसको तो मिर्गी के दौरे आते थे, है ना। मैं नंबर 1 फील्डर ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जॉन्टी रोड्स, उसको मिर्गी के दौरे आते थे। सो दीज पीपल हैड ओवरकम देयर वीकनेसेस एंड परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, है ना। सो सो दैट वे हमको हमारे थिंकिंग पैटर्न्स पे कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से जो है स्ट्रेस जनरेट होता है ना। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, राइज अबव अनएक्सपेक्टेबल। याद रहेगा। जिन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं उनको चेंज कीजिए, पर जिनको चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड राइज अबव अनएक्सपेक्टेबल। जैसे कोरोना सिचुएशन, इट वॉज कंप्लीटली एन अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन। सो वी नीड टू डेवलप आवरसेल्फ टू rise to this such kind of unexpectable situations. Hmm. तो चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड राइज अबव अनएक्सपेक्टेबल। देखिए मेरे खुद के जीवन से एक बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इससे बड़ी केस स्टडी मेरे खुद की लाइफ में रही नहीं है, जिसमें मे भी एक ऐसी सिचुएशन पहुंच गया था जिसने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया था। बट वही, इवेंट्स डू नॉट हैव मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट्स। ये कंसेप्ट जो है मेरे बहुत काम आया। कैसे काम आया? 6th या 7th क्लास में भी कभी कोई मेरे से पूछता था कि आपका एम क्या है, व्हाट द गोल ऑफ योर लाइफ, तो आई यूज टू से दैट आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। 10th क्लास की गर्मी की छुट्टियों में जब मेरे सारे मित्र जो है, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई मूवी देखने चला गया था, अलग अलग प्रकार से वो लोग एंगेज किए थे, उसी समय से मैंने उसी दिन से मैथमेटिक्स की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि मैं AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हमारे टाइम पे AIEEE चलता था, 2003 की बात कर रहा हूँ। बाद में तो 2011-12 से तो सब कुछ IIT से ही सिलेक्शन फिर चालू हो गया। तो उस समय मैं इतने पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया था। बट इसके बाद फिर 11th और 12th में थोड़ा भटक गया, क्योंकि मित्र मंडली जो संघ है, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने काफी भटका दिया था। तो इस वजह से 12th के साथ जब मैंने AIEEE का एग्जामिनेशन दिया, तो मेरी स्टेट रैंक 10,000 पार कर गई, है ना। तो वैसी स्थिति में कोई बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। माय फादर सेड, कोई बात नहीं, हमारी कपड़े की दुकान है,
अभी भी आशीर्वाद मार्केट में कंचन का आया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों पिता पुत्र मिल करके कपड़े की दुकान चलाएंगे, साड़ियों की दुकान चलाएंगे। साड़ी की दुकान का मेरा बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां पे लेडीज आती थी, है ना, 5 10 15 20 25 30 साड़ी खुलवाती थी, मोल भाव के चक्कर में एक भी नहीं ले जाती थी, फिर बैठ करके घड़ी करते रहो। तो मैं सोचा कि कभी जीवन में साड़ी साड़ी की दुकान नहीं चला सकता मैं। मैंने सोचा अगर मुझे कभी बिजनेस भी करना हुआ, कुछ दुकान भी चलानी हुई, तो मैं मेडिकल शॉप खोलूंगा। एक पेशेंट जो है, कोई जाकर के मेडिकल शॉप में नहीं बोलता ये दिखाओ कि वो दिखाओ, कोई मोल भाव नहीं करता मेडिकल शॉप में जाकर के कि 550 का बिल बना है तो बोले 450 ही देंगे ना, ऐसा नहीं होता, भगा देगा वो मेडिकल शॉप वाला। बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं कहाँ इस प्रकार की बात सोच रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्लियर था। 10th की गर्मियों में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और आगे बढ़ गया था। फिर कहाँ मैं मित्रों के चक्कर में भटक गया। दोबारा से मैं 1 साल ड्रॉप लेना चाहता था। मेरे फादर ने कहा तुम्हारे स्कूल में पता करो किसी ने ड्रॉप लिया है। मैं जॉय हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर को पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक भी बच्चे ने ड्रॉप नहीं लिया था। फिर से मैं फादर के पास, मैंने कहा नहीं किसी ने ड्रॉप नहीं लिया। फादर ने कहा तुम क्यों अपना 1 साल बर्बाद करना चाहते हो, मैं तुम्हारा फादर, एज योर वेल विशर आई एम सजेस्टिंग डोंट गो फॉर अ ड्रॉप। तुम्हारे इतने पीछे पीछे 10,000 रैंक लगी है, थोड़ा कुछ मेहनत किए, 9,000 लग जाएगी, 8,000 लग जाएगी, 7,000 लगी है तो बहुत ज्यादा मेहनत की, 5,000 लग जाएगी, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे। बट स्टिल आई हैड सम होप, आई वांटेड टू गिव अ ट्राई। 1 साल ड्रॉप लिया, एकदम एक साधु की तरह जीवन बिताया। जो जो चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी या मेरा टाइम किलर का काम करती तो उन सभी से अपने आप को दूर रखा। मूवीज देखना अच्छा लगता था, नहीं देखा। क्रिकेट तो मेरी जानी थी। क्रिकेट मैचेस भी नहीं देखे उस 1 साल के। उसके बाद फिर घूमने फिरने का शौक था, जो कि 11th 12th में ऑलरेडी बहुत घूम फिर करके टाइम किल कर दिया था, नहीं घूमता था। खाने पीने का बड़ा शौक था, पार्टीज में, शादी पार्टी कहीं निमंत्रण में नहीं जाता था, कहीं भी जाओ टाइम जाता है। मैं जानता था मैं एक बहुत ही हारी हुई रेस को जीतने का प्रयास कर रहा हूँ, इस कारण से एकदम एक निष्ठ होकर के 1 पॉइंटेड डिटर्मिनेशन के साथ में इस एग्जामिनेशन की तैयारी की। 364 दिन की तैयारी, 365वें दिन विफल ना होने पर, इस कारण से भगवान से प्रार्थना किया एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के पहले, एग्जाम दिखने के पहले। और फाइनली अच्छे से एग्जाम दिया। 15 20 दिन बाद, 21 दिन बाद जब उसका रिजल्ट आया तो मैं भी सरप्राइज था, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था रिजल्ट में, वैभव गुप्ता स्टेट रैंक 433, 433। तो आप समझ सकते हैं कि 5 डिजिट रैंक को थ्री डिजिट रैंक में कन्वर्ट करने में मुझे कितने पापड़ नहीं बेलने पड़े होंगे। बट आई लर्न ग्रेट वंडरफुल lessons फ्रॉम दिस इंसिडेंस। I understood that failure is not a failure if we learn from it. Moving from failure to failure without the loss of enthusiasm is the sign of a mature person. Hmm. I understood that failure can be one of the recipes to success, है ना। तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी मैंने एक चैलेंजिंग सिचुएशन में कन्वर्ट किया। होपलेस नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ में चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस किया। आज कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी टैलेंटेड, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बट दे बिकम होपलेस एक्चुअली, है ना। इतनी आपकी जितनी टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, वहाँ पे कितने सारे सुसाइड के मामले आते हैं। हमारा कॉलेज एनआईटी भोपाल, वहां से ही तो हर साल एक दो सुसाइड के केसेस आते हैं। कोई बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं रहता सुसाइड का, ऐसी कोई मतलब नॉन एक्सेप्टेबल रीजंस रहते हैं। सो युद्ध जो है अभी फिजिकल लेवल पे नहीं है, मेंटल लेवल पे है ना। तो ये जो मैं थ्री थ्री मोड्स होते हैं हमारे, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम सभी के अंदर में है ना। इन मोड्स के द्वारा ही संचालित होकर के हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी थॉट प्रोसेसिंग एफ्लेक्ट होती है ना। तो बड़ी से बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी, अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली पावरफुल है, तो हम उसको उसको डिकोड अलग प्रकार से करेंगे, और हमारी एफिशिएंसी जो है उससे निपटने की बढ़ जाएगी। तो राइट माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये तो मैंने अपनी केस स्टडी डिस्कस की, है ना। जिन्होंने एम एस धोनी मूवी देखी हो या एम एस धोनी की केस पूरी बायोग्राफी पढ़ी हो, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एक सिंपल लड़का जिसके पिताजी जो है वो वो भी ही वाज आल्सो फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड, है ना। ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द ग्राउंड बाय पुटिंग वाटर इनटू इट। The MS Dhoni's father's profile I'm talking about. MS Dhoni very simple background, no political background, no political influence, कोई पहचान नहीं, केवल अपने टैलेंट के दम पे बंदा जो है वो एक रांची
हाँ, रांची जैसी जगह से एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में अपने अपने आप को प्लेस करता है, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनता है। और 28 साल बाद भारत में 50 ओवर्स मैच का वर्ल्ड कप जिता कर खिलाते हैं। तो मल्टीपल इंस्पायरिंग स्टोरीज आर देयर। एक्चुअली हमको मूवीज भी देखनी चाहिए ना, तो जो सही बायोग्राफी पे बेस्ड है वो देखना चाहिए, रादर देन फिक्शन। तो जो ये थ्री मोड्स हैं ये समझना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में हमारी कॉन्शियसनेस चेतना का स्तर काफी अच्छा रहता है। मोड ऑफ पैशन में मिडिल, और मोड ऑफ इग्नोरेंस में एकदम न्यूनतम आ जाता है। डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो जाती है। इग्नोरेंस का लेवल जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति जो है वो एकदम ब्रेक डाउन की स्थिति में पहुंच जाता है। हम्म। तो द सेम सिचुएशन कैन हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, एंड हाउ टू डेवलप दिस गुडनेस विल कम लेटर, बट जस्ट एक स्टोरी के माध्यम से ये तीन मोड्स में कैसे एक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का रिस्पॉन्स हो सकता है वो जैसे बताने का प्रयास करूंगा। मोड ऑफ गुडनेस मीन सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस, समाधान से समस्या से समाधान की ओर। हम्म। अब मैं केस स्टडी बताता हूँ, इंटरेस्टिंग केस स्टडी। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है। उसके पिता एक किसान रहते हैं, और उन्होंने वहाँ के एक जमींदार से काफी सारा लोन लिया रहता है, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि जो लोन लूंगा इससे मेरी फसल अच्छी आएगी तो वापस से पूरा लोन मैं चुका दूंगा। फसल सही से आती नहीं है, और जमींदार जो है बार बार उसके जो मुनीम रहता है, उसका जो असिस्टेंट रहता है, उसको पैसा लेने के लिए बारंबार इस किसान के घर में भेज दिया करता है। आ, ये लड़की 21 साल की रहती है, देखती है कि कभी भी मुनीम आकर के खड़ा हो जाता है और उधारी के पैसे वापस देने की बात करता है। और पिता जो है उसके किसान काफी समस्या में आते, काफी स्ट्रेस में जाते हैं। तो पर पैसे तो उनके पास रहते नहीं, तो देंगे कहाँ से? तो बारंबार उसको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, विनती करनी पड़ती है कि बाद में आइएगा। एक दिन जमींदार, जिसकी उम्र करीब 60 साल रहती है, वो बोलता है कि आज तो मैं इस किसान से पैसे वसूल कर ही रहूंगा। और वो अपने मुनीम के साथ आता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है, तुरंत ही किसान की ये सुंदर कन्या, 21 वर्षीय कन्या जो है वो दरवाजा खोलती है। इसकी सुंदरता को देख करके जमींदार जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, और मुनीम को बाजू में बुला करके बोलता है, पैसे की छोड़ो, मुझे इससे विवाह करना है। मुनीम कहता है तुम्हारी पूरे गांव में थू तो हो जाएगी, है ना, तुम्हारी पूरी इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी। तुम 60 साल की और ये 21 साल की, है ना, यंग लड़की है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। बट, है ना, when a person becomes lusty he loses his intelligence। तो बोलते नहीं नहीं, कुछ तो करो, मुझे तो इस कन्या से विवाह करना है। मेरी पत्नी का तो पहले ही देहांत हो चुका है। तो मुनीम जो है वो तरकीब लगाता है, दिमाग लगाता है, बोलता है क्या करूं क्या करूं। ये जमींदार तो सुनने वाला है नहीं, बोलता ठीक है कल पंचायत बैठाओ, उसमें मैं कुछ ना कुछ तिकड़म लगाता हूँ। तो पंचायत बुलाते हैं। मुनीम जमींदार का केस रखता है कि किसान ने उधारी लिए थे काफी बड़ी रकम, और समय पे चुका नहीं पाया। तो इसके लिए बोलते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं। क्या प्रपोजल रखते हैं? वो दो थैलियां लाता है ना, कपड़े की थैलियां। तो नहीं, एक एक थैली लाता है, उसमें कुछ पत्थर रहते हैं। तो बोलता है इसमें सफेद पत्थर है और काला पत्थर है, दो पत्थर हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कंडीशन रखता है कि अगर आ, ये कन्या जो है, ये सुंदर कन्या जो है, इन दोनों पत्थरों में से एक पत्थर का चयन करेगी। अगर सफेद पत्थर निकल करके आता है तो किसान का पुराना पूरा लोन माफ हो जाएगा। परंतु अगर काला पत्थर निकल करके आता है तब भी इस किसान का पूरा लोन माफ हो जाएगा, परंतु इस कन्या को जमींदार से विवाह करना होगा, है ना। तो अभी ये कन्या जो है ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति में जाती है, क्योंकि जानती है कि पैसे तो है नहीं हमारे पास में चुकाने के लिए, और ये जो कंडीशन है बड़ी क्रिटिकल है। बाई चांस अगर काला पत्थर निकल गया तो मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा, है ना। तो इसमें कई सिचुएशंस जनरेट होती हैं। अगर वो रिस्क लेकर के
रिस्क लेती है और पत्थर उठाती है और काला पत्थर आता है, तो इसको कहेंगे लूज विन सिचुएशन। कि कन्या तो लूज हो गई क्योंकि उसके तो विवाह एक 60 वर्षीय व्यक्ति से करना पड़ेगा, परंतु उसके पिताजी जो है वो विन कर जाएंगे, है ना। अगर वो उस परीक्षा में जाने से मना कर देती है ना, ये प्रपोजल को डिस्कार्ड कर देती है, इट कैन बी अ विन लूज सिचुएशन। कि ठीक है, कन्या की लाइफ तो बच गई, पर पिताजी का जो पेन जो है वो तो बना रहा, है ना। और विन विन सिचुएशन तभी आएगी जब सफेद पत्थर निकलेगा, है ना। समझ सकते हैं ना 3 सिचुएशंस को। अब अभी जैसे ही वो खोल करके देखती है, तो दोनों ही पत्थर काले रहते हैं उस पोटली में। यानी कि कोई स्कोप ही नहीं है सफेद पत्थर का, है ना। तो अभी बेसिकली वो चाहे तो काला पत्थर उठाए और बोले ठीक है, काला पत्थर निकला, एटलीस्ट पिताजी का लोन तो माफ हो गया, ठीक है, मैं जो है घुट घुट कर अपना जीवन जी लूंगी। परंतु क्या ये श्रेष्ठकर कार्य होगा? तो वहीं पे वो भगवान से प्रार्थना करती है टू गिव मी राइट इंटेलिजेंस, कि हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो उस समय तुरंत ही उसको एक योजना जो है वो क्लिक करती है। वो जो है वो तुरंत ही पत्थर को उस पोटली में से निकाल करके नीचे गिरा देती है, और नीचे तो बहुत सारे सफेद पत्थर, सफेद काले पत्थर जो है, बहुत सारे पत्थरों का मिश्रण था। उसके बाद बोलती है मेरे से गलती हो गई, मैं जो पत्थर उठाई थी वो गिरा दी। पर स्वाभाविक सी बात है, जो बचा हुआ पत्थर है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरा कौन सा पत्थर होगा, है ना। समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों ही पत्थर काले थे, उठा भी काला था, गिरा भी काला, और बचा भी काला। परंतु अब मुनि इस पोजीशन में नहीं है कि हमने दोनों पत्थर, मुनि इस पोजीशन में नहीं है कि वो बोले कि हमने दोनों पत्थर काले रखे थे, है ना। अदरवाइज पूरी गांव में उन्हीं की जो है इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे कोई होप भी नहीं है, बाय द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ वंस इंटेलिजेंस, बाय मेंटेनिंग पेशेंस इन द सिचुएशन, है ना, अ पर्सन कैन कंप्लीटली टर्न द सिचुएशन अपसाइड डाउन, है ना। भगवत गीता पे एनालॉजी आती है जिसमें 5 घोड़े 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन डोर से वो बंधे हुए हैं वो माइंड को रिप्रेजेंट करती है, जो सारथी जो चैरियट ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, और व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो स्वयं हम आत्मा, सोल। तो ऐसी स्थिति में जितनी स्ट्रांग इंटेलिजेंस होगी, उतना स्ट्रांगली वो माइंड को कंट्रोल में रखेगी। माइंड के माध्यम से सेंसेस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। करेक्ट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट our our system is intelligent driven, not mentally driven. माइंड का क्या फंक्शन है? माइंड ऑलवेज गिव्स प्रपोजल, इट कैन बी गुड और बैड। इंटेलिजेंस का फंक्शन है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड गो फॉर द राइट वन, है ना। किसी को जैसे बहुत तेज सर्दी है, उस समय में कोई अगर ठंडी लस्सी ले आता है, पीने में तो अच्छी लगेगी, और माइंड बोलेगा अभी थोड़ी सी पी लो, बट इट इज इंटेलिजेंस विच विल डिस्कार्ड, है ना। किसी का पेट सही नहीं है, उस टाइम पे भी कोई डबल चीज पिज्जा ले आया, माइंड तो बोलेगा खा लो, थोड़ा तो खा ही सकते हो, परंतु इंटेलिजेंस विल डिस्क्रिमिनेट, नो इट इज नॉट गुड फॉर यू। अब बहुत तेज साइकिलिंग करके, बहुत तेज दौड़ करके आए गर्मी के मौसम में, तुरंत ही ठंडा पानी पीने के लिए माइंड सजेशन दे सकता है, बट इंटेलिजेंस विल से इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो माइंड एक छोटे बच्चे के समान है, इंटेलिजेंस एक बड़े अडल्ट के समान है ना। सो हाउ टू स्ट्रेंथन अवर इंटेलिजेंस सो दैट इंटेलिजेंस कंट्रोल्स द माइंड एंड नॉट वाइस वर्सा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे तो हमारी सिचुएशन जो है बहुत ही खराब रहेगी। जस्ट मैं बहुत ही क्विकली, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में हमारी कौन सी क्वालिटीज जो है वो आती हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा वेरी क्विकली, एंड यू कैन योरसेल्फ थिंक दैट इन विच मोड यू आर सिचुएटेड इन। मोड ऑफ इग्नोरेंस में ये 22 चीजें होती हैं जो मैं बहुत क्विकली पढ़ने वाला हूँ, किसी को चाहिए होगा तो बाद में नोट शेयरिंग कर दूंगा। If you are situated in a mode of ignorance, it will cause excessive thinking about past and future. Fear of failure will be there. Anxiety about the future, है ना? Lamentation, confusion, delusion, loss of self-confidence, laziness, which leads to excessive sleep, criticizing nature, criticizing oneself, criticizing others, blame game, not accepting one's mistake,
लैक ऑफ प्लानिंग, वेस्टिंग टाइम, है ना, इनएबिलिटी टू फॉलो अ शेड्यूल और टाइम टेबल, बनाएंगे तो पर फॉलो नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉन्शियसनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क और एक्टिविटीज, inability to take action, lack of punctuality, lack of cooperation, non-gratitude, forgetfulness is very prominent in ignorance, irresponsible behavior, है ना. So all these are the like situations of a person who is whose main mode of functioning is ignorance. Mode of passion में क्या होता है ना. The desires becomes very uncontrolled, है ना. Anger, pride, envy, greed, है ना. A person does the things very in a very haphazardly, very fast, है ना. A person have determination, but it is short term, है ना. Person has short term enthusiasm, not a long term enthusiasm. Mind remains agitated, hardly calm. Distraction is very prominent in this mode. है ना. A person will sleep very little. In the mode of goodness, these following 19 qualities है ना comes: discipline, discretion, self-confidence, firm determination, gratitude, appreciating others' contribution, tolerance, humility, empathy, maturity, knowledge, cleanliness, power of thoughts, willpower, है ना, रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, है ना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लव, कंपैशन, कंट्रीब्यूशन, है ना. We derive more happiness by being a contributor. So this is how like the three modes, है ना, or the qualities which comes under these three modes. So in Bhagavad Gita, Krishna is asking Arjuna to raise himself from the mode of ignorance and passion so that they can be right decision making. And Arjuna was in the middle of the two armies. So there he got confused. So he also like was functioning in the mode of ignorance. It was Krishna who enlightened him by giving him the knowledge of Bhagavad Gita and pulled him to the mode of goodness where his decision making and I got corrected. So similarly, we also face multiple situations in our life. We do not have any influence over the situations actually. है ना, we can only have influence over the how we respond to those situations, है ना. अभी जैसे किसी रोड में बहुत गड्ढे हैं तो हम थोड़ी कोई गड्ढे भरने के लिए जाते हैं, हम एक सही कार का चयन करते हैं जिसके शॉक अप्स अच्छे हैं. बाहर अगर बहुत तेज बरसात हो रही है तो उस पर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. हम रेनकोट पहन सकते हैं, हम छाता लगा सकते हैं, दैट इज विद इन अवर इन्फ्लुएंस. तो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये दो सर्कल समझना जरूरी है. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो सारी चीजें आती हैं जिनके जिनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है. सर्कल ऑफ कंसर्न वो सारे थॉट्स आते हैं जिनके ऊपर जो हमारे कंसर्न तो जो हमारी चिंताएं तो, परंतु उसके ऊपर ऊपर हमारे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना. तो बुद्धिमान व्यक्ति जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे कार्य करता है. जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस टाइम पे गुजरात पे फोकस किया, है ना. बाकी देश के बारे में चिंता नहीं करते थे, गुजरात फोकस थे. बाद में जब उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा, है ना, नेशनल लेवल पे पीएम है, तो नाउ ही थिंक्स अबाउट द नेशन, है ना. तो सिमिलरली व्हेन वी सिंसियरली वर्क ऑन आवर फोकस ऑफ influence, area of influence, that area of influence grows. So it's very important that our energy doesn't go in the wrong direction, but it goes in the right direction, है ना. फूटे मटके में पानी भरने का कोई लाभ नहीं है ना. पानी भरेंगे पूरा पानी जो है बाहर निकल जाएगा. So similarly, we should be very choosy, or we should be very intelligent, है ना, while investing our energy, time and enthusiasm. Hmm. सो एक छोटे से सेशन में तो मैं क्या ही कवर कर पाऊंगा, बट हाँ कुछ बेसिक्स जिससे हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डिफाइन हो सकती है. एंड वी कैन गेट सम इंस्पिरेशन टू रीड these final concepts mentioned in the pages of Bhagavad Gita, the time tested wisdom, so we can be the beneficiary, है ना. स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे जो सटल बॉडी है विच इज मेड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, इस पे बहुत काम करती है ना. भगवत गीता में सारी ही समस्याओं के समाधान दिए गए हैं, है ना. उसमें आपको बेरिलियम का एटॉमिक नंबर नहीं मिलेगा, परंतु उसकी जरूरत भी नहीं है. पर हाँ जो जीवन में समस्याएं जो हमारे जीवन में आती है उनके समाधान जरूर दिए गए हैं, है ना. मैं तो इनफैक्ट जितने भी पुलिस सेशंस लिया हूँ उसमें ये क्वेश्चन पूछा दिस इज द लास्ट पॉइंट, आफ्टर दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. तो मैं तो सारे ही पुलिस सेशंस में प्रश्न पूछता हूँ कि जितने भी क्राइम्स हमारी पूरी सोसाइटी में हो रहे हैं,
क्या 95% प्लस क्राइम्स को हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं? तो इवन दे हैव नॉट थॉट इन दिस वे कि जितने सारे इतने सारी धाराएं हैं, इतने सारे वकील लोग इतनी सारी धाराओं को याद करते हैं, है ना, कोर्ट्स में डिस्कशन होता है, जितने भी प्रकार के क्राइम्स हैं आपके, क्या 95, 96, 97, 98% क्राइम्स को हम इन कोई 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? आप भी सोच सकते हैं, करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। इन 3 कैटेगरीज में आप डाल दीजिए जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं, इसके अंदर ही आपके मैक्सिमम क्राइम्स आ जाएंगे। व्हाट इज द रीजन ऑफ करप्शन रिलेटेड क्राइम्स? अनकंट्रोल्ड ग्रीड। What is the reason of sexuality related crime? Uncontrolled lust. What is the reason of violence related crime? Uncontrolled anger. काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्या idam ih very now. Krishna is saying in Bhagavad Gita, this calm and growth which are born out of rajoguna samudbhava, born out of rajoguna, these are the destructive forces, है ना? तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो रूट कॉज को जो है वो डिफाइन करती है कि रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है ना? जैसे किसी के चेहरे में बहुत सारे पिंपल्स हैं, एक तो तरीका ठीक है, ऊपर से ट्यूब लगा करके ठीक कर लो। दूसरा है कि जाओ तो सही कि पेट की समस्या है, पित्त बढ़ा हुआ है, कि क्या रक्त में कुछ समस्या है, क्या समस्या है बेसिकली। तो रूट कॉज में जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो इन दैट वे स्पिरिचुअलिटी हैज अ लॉट टू डू, है ना? इट डील्स विद द सटल बॉडी, हाउ आवर थॉट प्रोसेसिंग शुड बी, इसके बारे में चर्चा होती है। तो सिचुएशंस जो हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना? और इवेंट्स डू नॉट हैव मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट्स। कोई एक घटना जो हुई है वो अच्छी है कि खराब है, हमारे इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। तो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जिस मात्रा में हमें क्लियर होंगे उतनी क्लैरिटी के साथ हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ मच मोर मैच्योर वे ऑफ thinking patterns in our life, and our this our mental strength will increase. We can be strongly mental or we can be mentally strong, depends upon our choice. We are what our association is, है ना? पानी की भी 3 स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पानी अगर फ्रीजर में जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा, जलते हुए तवे में जाएगा तो हवा बन के उड़ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में पानी है। धूल भी कीचड़ के साथ मिक्स होती है, पानी के साथ मिक्स होती है कीचड़ बन जाती है, हवा के साथ मिक्स होती है तो हमारे सिर के ऊपर आकर के बैठ जाती है। करेक्ट, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रीडिफाइन योर एसोसिएशन, है ना? एसोसिएट विथ, है ना, स्क्रिप्चर्स विच आर टाइम टेस्टेड स्क्रिप्चर्स। सो देयर इज नथिंग विच कैन वर्क, है ना, better than Bhagavad Gita as far as our mental patterns are concerned, our thinking patterns are concerned. Thank you very much. Hare Krishna. कोई प्रश्न किसी का जीवन से जुड़ा हुआ तो जरूर से पूछ सकते हैं। Hare Krishna. Thank you so much, Vijay Krishnoji, for taking this short and very powerful session on managing our stress. So, I would request कि अगर आप में से किसी के पास भी कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार के भी कोई कमेंट्स, फीडबैक